हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो एंड लर्न कर रहे हो। चलो अभी के लिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रोटेशन टेकन फ्रॉम एसबीटी। We will try to discuss each and every concept that will find application in order to solve this question. ठीक है? So let's start first with reading the question carefully. So there is a uniform rod of mass m and length l. This is hinged. अब देखो हिंज्ड का मतलब समझते हो। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज को हिंज कर देते हो, what does it mean? It has a simple meaning that this point lying on the rod will always stay at rest, and around this point this bulk body will go in pure rotation. ठीक है? सो हिंज्ड पॉइंट के अराउंड अक्सर हम देखते हैं बॉडी किस तरह से बिहेव करता है। इस बॉडी का हर पॉइंट कैन गो इन अ सर्कल अराउंड दिस हिंज्ड पॉइंट। डन है ना? सो वी ट्रीट इट लाइक द पॉइंट एट विच द रॉड इज हिंज्ड और एनी बॉडी इज हिंज्ड, दैट पॉइंट विल एक्ट एज इफ थ्रू इट an axis is passing around which the body is in pure rotation. ठीक है? So this is the case. अब देखो ये जो मोशन है ना, ये जो रोटेशन हो रहा है, this is happening in a horizontal plane. And if it is happening in a horizontal plane, gravitational force and normal reaction acting, जैसे देखो यहाँ पे ये mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, which is not in the plane of this board. ठीक है? तुम इसको सही से इमेजिन करना। दिस इज लाइक अगर मैं ऐसे कुछ करने की कोशिश करूँ, तो दिस इज लाइक देखो ऐसा कुछ है ना, यहाँ पे ये हिंज्ड है। सो बेसिकली mg will act downward, not in the plane perpendicular to the plane. N will act up like this. And if you talk about mg ka torque around hinge point, it will be this. N ka torque around hinge point, it will be this. And since this body is lying in the horizontal plane, it is not moving in vertical plane, N has to be equal to mg, right? Because vertically it is in equilibrium, right? So N has to be equal to mg, and in that case their torque will get what? They will get cancelled. So overall इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, we won't be talking about normal reaction and mg, and you know the reason why we won't be talking about it, क्योंकि दोनों का टॉर्क क्या है, कैंसिल हो रहा है, they are not coming into account. डन है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। when the rod is perpendicular to the wall, a constant force F. अब देखो रॉड यहाँ पे जो हिंज्ड है ये perpendicular to the wall है, so this is position A. ठीक है? So in position A it is perpendicular to the wall, and at this point a constant force F starts acting at its center of mass. ठीक है? In the horizontal direction perpendicular to the rod. So force is acting like this. The force remains parallel to its original direction and acts at the center of rod as the rod rotates. So ये जो force है ना, ये हमेशा ही इसी point पे लग रहा है और हमेशा ही इसी direction में लग रहा है। ठीक है? Now, and also its magnitude is remaining constant. Now we are asked two things. First thing, with what angular speed will the rod hit the wall? So if this F force is pushing this rod from position A, it will come like this, है ना? And it will come here at some time. It will hit the wall, right? So we are getting asked at what angular speed will the rod hit the wall? डन है? सो फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज द मोशन। सबसे पहली बात जो मैंने करी वो मैंने ये करी कि इफ योर बॉडी इज हिंज्ड, then around that hinge point body will be in pure rotation. So if this body is in pure rotation, we will be talking about omega, we will be talking about alpha. ठीक है? So alpha is what? Angular acceleration. And just like linear acceleration, angular acceleration will be constant when torque acting on it is constant. अब आप इस torque का relation देखना ध्यान से। ठीक है? So यहाँ पे देखो torque कैसे लगा? This line of action of force is this. So torque हम कैसे लगाते हैं? R cross F. R कहाँ से लेना start करोगे? Around the point of rotation. So R cross F. It is this, and the magnitude will be how much? R value is how much? L by 2. F value is F. Angle is how much? 90. So sin 90 will become 1. अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब फोर्स यहाँ, जब ये रॉड यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया है, देन यू ट्राई सीइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। आप क्या लिखोगे? R cross F. Done it? So this R is how much? L by 2. No doubt. Yes, it is. So L by 2, क्योंकि distance of center of mass from the axis of rotation point will be always L by 2, right? So L by 2 into F, and what is this angle? If this angle is theta, तो ये एंगल अगर ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो हॉरिजेंटल से क्या बनाएगा? 90 minus theta. So this is
Sine 90 minus theta, that is cos theta. So torque had changed, right? And if at various positions, this theta will be different, right? And so torque will be different. So this is a case where alpha is not constant. And if alpha is not constant, how we can write things? अगर acceleration constant नहीं होता है, तो हम क्या लिखते हैं? Acceleration equal to dv by dt. ये तो हम कभी भी लिख सकते हैं, बट यस वी कैनॉट अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एंड इन दैट केस सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स हेल्प्स अस। डन है। एक्सेलरेशन का एक चीज हम और लिखते हैं, वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है। सो हियर ऑल्सो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बाई डी थीटा। yes, we can write it like this. And why this one we will go with? क्योंकि देखो हमें बताना है जब ये यहाँ आकर हिट करता है तब उसकी ओमेगा कितनी होगी। यहाँ आकर हिट करने का मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 एंड इट एंडेड एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। सो थीटा बेसिकली आई एम टेकिंग एज एन एंगल दैट दिस रॉड इज मेकिंग विद द वर्टिकल। सो इनिशियली इट इज along this line, this is this line, so theta is 0, finally it is 90. So when theta will change from 0 to 90, omega will change from where to where. So initially it was at rest, right? So initial omega naught is 0. Finally let's say it is omega. You just need to differentiate it, है ना? So omega d omega equal to आप क्या लिखोगे? d theta. ठीक है। एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू ओमेगा एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, राइट। सॉरी मैंने कुछ तो मिस किया ना, डी थीटा इंटू अल्फा। ठीक है। सो दिस इज दिस। अब देखो यहां से ओमेगा स्क्वेयर बाई 2 को आप क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वेयर बाई 2 इज अल्फा डी थीटा। ठीक है। 0 से पाई बाई 2। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट अल्फा। अब आप अल्फा निकालो, दिस इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। अल्फा को आप क्या लिखोगे? आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। जिस तरह से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, so torque at any angle theta you write it, so that is equal to FL by 2 cos theta. What is moment of inertia of this body? Around which point? Around the axis of rotation, that is this one, right? So that will be ml square by 3 alpha. ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग अल्फा, एक एल को आप कट कर देना यहां से, एंड देन यू विल बी गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 3f बाई 2ml। डन है। 2ml cos थीटा। यही आया ना हमारे पास? डन है। सो दिस वन वी आर गेटिंग। अब देखो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 3f बाई 2ml, एंड दिस विल बिकम हाउ मच? cos थीटा डी थीटा। ठीक है। सो राइट इट लाइक 0 से पाई बाई 2। ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू वी विल बी गेटिंग? 3f बाई 2ml cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा? साइन थीटा, एंड साइन थीटा पाई बाई 2 से 0, आई मीन दैट विल गिव यू, दिस विल बिकम जनरली 1। it will become 1, right? So this is 1 into 1. So 3f by 2ml. Omega square by 2 का value है. 2 will get cancelled. So omega is equal to how much? Root under 3f by ml. Done. So this is the one way we can do it. Another way we can also use work energy theorem. Work done by all forces is equal to what? Change in kinetic energy. So since body is in pure rotation, work done के लिए मैं tau d theta use करूंगी। ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो हिंज है ना, इससे भी फोर्स पास कर रहे होंगे, बट आई मीन दिस torque, if you are calculating around the hinge point, then whatever force is passing through hinge point, its torque will become 0. So work done by all forces में I won't be considering hinge force because its torque will be 0 around this one. ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे जब हम प्योर फोर्स की वजह से वर्क डन निकालेंगे ना, एफ इनटू हाउ मच डिस्टेंस इट सेंटर ऑफ मास हैज गॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, वी मे गेट कंफ्यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग कि हमने हिंज फोर्स को क्यों इग्नोर किया। वी शुड हैव टेकन, राइट? सो आप एक काम करो, वैसे भी आप कह सकते हो वहां भी कि हिंज फोर्स वोंट बी, आई मीन मेकिंग दिस हिंज पॉइंट मूव इन एनी वे, बट again we should not be putting so much complication into the question. We should be making it more clear. ठीक है। so simple है। this is a case of pure rotation. Work done I'm going to write at tau d theta. ठीक है। and work done because of all
फोर्सेस, सो टॉर्क बिकॉज ऑफ ऑल फोर्सेस। एफ का mg एंड n का कैंसिल है, हमें पता है। हिंज से जो भी फोर्स पास कर रहा होगा उसका टॉर्क अराउंड दिस पॉइंट विल बी जीरो, सो नो टेंशन, ओनली एफ का लेना है, ठीक है। सो टाउ डी थीटा को आप क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इज जीरो, फाइनल आप क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। टाउ का वैल्यू क्या है, देखो टाउ हमने यहाँ पे लिखा था ना एफ एल बाई टू कॉस थीटा, सो आप यहाँ पे भी लिख दो एफ एल बाई टू कॉस थीटा d theta, ठीक है। So we have done no mistake, right? F L by 2 cos theta, yes. So this is this, okay, theta will vary from 0 से pi by 2 and this is equal to half I omega का square. अब देखो एफ एल बाई टू दिस विल बिकम वन एंड दिस इज हाफ, आई का वैल्यू क्या होगा, एम एल स्क्वेयर बाई थ्री इंटू ओमेगा का स्क्वेयर, सो टू टू विल गेट कैंसिल्ड, वन एल विल गेट कैंसिल्ड एंड थ्री एफ बाई एम एल विल बी द value of omega square. So omega will be how much? Root under 3f by ml. ठीक है, डन है। सो सेम थिंग वी आर गेटिंग। अब देखो अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज आस्किंग एट व्हाट एंगल थीटा द हिंज फोर्स विल मेक अ 45 डिग्री एंगल विद द रॉड। नाउ वी रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस हिंज फोर्स। हिंज फोर्स क्या होता है, क्यों लगता है, ठीक है। सो हिंज फोर्स जो होता है ना, इट इज बेसिकली अराइजिंग बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट, आई वुड से कंस्ट्रेंट। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन सपोज कर लो हिंज नहीं है, so in the case it is not hinged, center of mass is here, force is acting here, what will happen, this rod, since force is acting at its center of mass position, this will go in pure translation like this, it will move further like this, right? लेकिन देखो हिंज की वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ हिंज थिंग प्रेजेंट, दिस डिडंट गो इन द प्योर ट्रांसलेशन, रादर इट वेंट अराउंड फॉर अ प्योर रोटेशन अराउंड द हिंज पॉइंट, डन है। सो ये चीज जो चेंज हुआ ना मोशन में, इट इज हैपनिंग व्हाई, बिकॉज ऑफ हिंज। सो हिंज इज पुटिंग अ कांस्टेंट ऑन द बॉडी। जैसे आप देख लो, अगर आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे थे और अचानक से ट्रेजेक्टरी ऐसा सर्कुलर हो गया, सो when you will come here, suppose you are letting a ball move like this, so the moment ball will come here, it will start going in a circular trajectory, willingly नहीं गया है, but because you have put uh, I mean you have put such a way, आई मीन आपने रास्ते में कुछ ऐसा रास्ता रखा है ना, दैट आई वुड से, आई मीन यू जस्ट चेंज द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी, फोर्स ऑन इट, इट विल गेट, I mean its direction will get changed in such a way that that will help it go round in a circular trajectory. So यहाँ पे भी ये constraint हुआ ना, क्योंकि ये रास्ते की वजह से ये circular motion में गया है, रास्ता ही ऐसा था, उसको जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी दिस इज हिंज्ड, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड पोजीशन व्हाट विल हैपन, दिस रॉड विल गो इन अ सर्कल। सो यहाँ पे भी जो तुम्हारा हिंज है ना, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा और वो फोर्स ही is letting it go in this pure rotation thing. I mean, it is helping it. जैसे आप दरवाजा खोलते हो, you are giving it certain push, and that push is getting redirected by hinge force in such a way that that darwaja is not translating in the forward sense, rather it is rotating around the hinge position. ठीक है, सो हिंज का बहुत बड़ा रोल है एंड दैट रोल इट इज एबल टू प्ले बाय अप्लाइंग सर्टेन काइंड ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सो हिंज फोर्स हम जनरली दो डायरेक्शन में लगाते हैं, एक हम लगाएंगे एफ एक्स, एक लगाएंगे एफ वाई। सो एफ एक्स किधर लगाए, एक को भी अगर आपने लगा लिया तो दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा उससे, अगर दूसरा जीरो है देन थ्रू कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग दैट जीरो, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम आते हैं, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से सोचो, ये बिकॉज ऑफ हिंज इज गोइंग इन अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। अब देखो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में किसी भी चीज को घूमने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, एंड हियर सेंटर इज व्हाट, इज दिस हिंज पॉइंट। आप ये फोर्स को ब्रेक करो, एफ का एक कंपोनेंट इधर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, सो दिस इज एफ साइन थीटा, अनदर कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू इट, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, राइट। कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, अब क्या होगा, सो हिंज विल डू समथिंग, राइट, हिंज रिएक्शन देगा और वो इधर की तरफ एक फोर्स देगा, एफ, लेट्स से दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर, एफ आर बोलते या कुछ भी बोल लो, एफ वन ले लो, एनीथिंग, या फिर एफ एक्स मान लो ना, इसको एक्स एक्सिस ले लेते, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लेते, ठीक है। सो दिस इज एफ एक्स,
नाउ एफ वाई यू कैन सिंपली टेक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये जीरो होगा तो कैलकुलेशन से जीरो ही आएगा, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट, बट या एफ एक्स विल बी इन दिस सेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। So we have drawn the hinge force. Now we need to look for at what angle theta the hinge force will make 45-degree angle with the rod. So यहाँ पे ये कह रहा है डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि कौन से थीटा एंगल के लिए हिंज फोर्स विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रॉड. So if fy is 0, there will be only fx and that will make an angle of 0 degree with the rod. So fy should exist, right? And resultant of these two, fx and fy, should be in such a way that this angle is your what, 45 degree. ठीक है. So that is what is getting asked in the question. तो हमारे पास देखो दोनों फोर्स हमने ले लिया. अब वी नीड टू राइट द डायनामिक्स. सो डायनामिक्स आप लिख डालो एफ साइन थीटा एफ एक्स माइनस एफ साइन थीटा आप क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? मास ऑफ रॉड इनटू ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2. m omega square r, radius is l by 2. So this is simply, you can also look at it like it is going in a circle of center of mass is going in a circle of radius l by 2, right? We can also look at it in this way. So this equation we can write, है ना. और अगर इस सर्कुलर मोशन को हम ध्यान से देखें, क्योंकि रोटेशन की आप बात कर रहे हो, सर्कुलर मोशन ही है, राइट. सो यहाँ पे अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करो, आई मीन कोई चीज रोटेट कर रहा है, तो वी कैन से इट इज गोइंग इन अ सर्कल ऑल्सो. सो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट के रोटेट सर्कुलर मोशन में जब ये जा रहा है, इट हैज सम टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग, देन एंड दैट इज एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एफ वाई अवे फ्रॉम इट, ठीक है. सो सेंटर ऑफ मास जो है उसका सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी देयर एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस एफ वाई. इसको आप क्या लिखोगे? मास इनटू ए सी एम, ठीक है. अब देखो इस सारे वैल्यूज को आप पुट करो, यू विल बी गेटिंग द आंसर. सो एफ एक्स को पुट, एफ साइन ओमेगा को पुट करो. ओमेगा अभी अभी हमें मिला है कितना, लेकिन ये हमें सर्टेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए मिला है. ओमेगा का आप जनरल वैल्यू लिखना. जनरल वैल्यू आप क्या लिखोगे? विदाउट पुटिंग द लिमिट, राइट. सो एज ए फंक्शन ऑफ थीटा ओमेगा तुम्हारा कितना होगा, यहां से निकाल लो. सो एफ एल बाई 2 कॉस थीटा आप लिखो सिंपली इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर. सो यहां से 2 2 कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा? दैट इज योर एफ एल बाई आई कॉस थीटा, एफ एल कॉस थीटा बाई आई. सो सेम वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, एफ एल कॉस थीटा बाई आई. So let us put that here, fx minus f sin theta is equal to ml by 2 and this is equal to how much? fl cos theta by I. I का वैल्यू क्या लिखोगे? ml square by 3. So m will get cancelled and this will become how much? ओके हमने इंटीग्रेशन नहीं करा ना, कॉस थीटा को डायरेक्टली लिख दिया यार, गलत किया ना. यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन साइन में है ना कॉस थीटा, आप इंटीग्रेशन करके निकालो, लिमिट पुट नहीं करना है ना. तो यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए यार, सॉरी दिस वाज अ ब्लंडर, है ना. ये नहीं करना था, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, आई होप यू आर गेटिंग इट. क्योंकि हमने टाउ डी थीटा, या फिर आप प्रीवियस केस से भी जा सकते हो, यहां से भी निकाल लो. आई मीन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 क्या था? 3f बाई 2 ml कॉस थीटा डी थीटा. कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा, राइट. सो 3f साइन थीटा बाई 2 ml इज ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर विल बी 3f बाई ml कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा. सो वही पे मिस्टेक किया हमने. यहाँ पे हमें क्या लेना है? हमें लेना है साइन थीटा. सो यहाँ से आप इसको पुट करो, यहाँ पे पुट करो साइन थीटा, ठीक है. सो दिस इज दिस. अब आप इसको कट करो, कट किया हमने, एक एल को, एल स्क्वायर है ना, दोनों ही एल कट हो जाएगा. सो दिस इज 3f बाई 2 साइन थीटा. एफ एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3 by 2 plus 1. So basically this is 5 by 2 f sin theta. ठीक है. So fx का वैल्यू इज दिस वन. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट fy, MACM. नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? यू नो अल्फा, राइट. सो इफ यू नो अल्फा, ACM विल बी इक्वल टू हाउ मच? अल्फा इनटू L by 2. So now let's go back where we have calculated alpha. अल्फा हमारा कितना था बताओ? अल्फा was this much, right? 3f by 2 ml cos theta.
So this is 3f by 2 ml cos theta into L by 2 करो आप. So you will be getting how much? 3f by 4m cos theta, right? 3f by 4m cos theta. आप यहाँ पे पुट कर दो इस पे. So f cos theta minus fy will be equal to mass into 3f cos theta by 4m. ठीक है? So fy will be equal to how much? That will become something fy will be this minus this. So f cos theta minus 3 by 4 f cos theta कितना होगा? f by 4 cos theta, right? So fy तुम्हारा कितना आया? f by 4 cos theta. And fx कितना आया था? आप उसको लिख लो. How much was the fx? कहाँ निकाला हमने? Okay. Where was the fx? Sorry, मैं तो उसको भूल ही गई कहाँ था. fx is 5 by 2f sin theta. चलो मिल गया. 5 by 2f sin theta. Now we need to calculate this what? I mean this is fx. So fx x axis ऐसा ले लो and this is your fy. ठीक है? And fy will be along this line. This is resultant of both. So this is fx. fy इसका magnitude क्या है? f by 4 cos theta. And this is how much? 5f by 2 sin theta. So this angle has to be 45 degree according to the question. Tan 45 is 1. So basically this two has to be equal, right? 5 by 2 f sin theta equal to आप क्या लिखोगे? f by 4 cos theta. अब इसको 2 से 2 को कैंसिल कर दो. Tan theta will be equal to how much? 1 by 10. So theta is how much? Tan inverse 1 by 10. So at an angle tan inverse 10 by tan inverse 1 by 10, if this is tan inverse 1 by 10, at that point hinge force will be making an angle of 45 degree with the rod. ठीक है? So I hope you have got this question. I hope you understood how to apply hinge force. I hope you understood कि omega d omega by d theta equal to alpha लिख सकते हैं. I hope you understood how to apply that thing, work energy theorem over here more easily. So I hope you have got overall thing. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.